What type of economic model should India adopt? Mahalanobis was born in 1893 in Calcutta. What are these models and how did the leaders of independent India should decide to choose which type of model? The role of the Planning Commission. First, capitalist economy. Second, socialist economy. And third, mixed economy. The government has no control over the market. The Indian government adopted 5-year plans, which is also known as Panchvarshiya Yojana. 1945 में उन्हें ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी की फेलो मेंबरशिप भी मिली थी। मार्केट की डिमांड डिसाइड करती है व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। व्हाट इज प्लान? इस मॉडल में गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मार्केट कंप्लीटली। व्हाट इज जीडीपी? डू यू नो दैट प्लानिंग कमीशन इज नॉट फंक्शनल एनीमोर? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। विच ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन? एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो वो जीडीपी में करता है उससे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी बनती है। जीडीपी एज अ केक एंड ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द केक। मॉडर्नाइजेशन नॉट ओनली refers to the adoption of the new technologies but also to the adoption of new phenomena such as societal norm. How is GDP calculated? He was an eminent statistician. The Mahalanobis model. In modern society, men and women have the same right of employability and the employment rights. इसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं और ये भी एक एस्पेक्ट है ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड अ जर्नल नेम्ड सांख्य। As we have seen in our previous video, how the Indian government had opted for mixed economy to kickstart the stagnant economy of the newly independent India. We had also learned about the factors depending on which GDP is calculated. Hello everyone and welcome to Education at Ease. मैं हूं हिना and in today's video we will see how the Indian government uplifted different sectors like agriculture sector, industrial sector and service sector to contribute to GDP to begin its journey where it has reached today. To start with, let's take the improvements made by the agriculture sector. We all know and have seen in our previous videos the sordid state of agriculture, where agriculture was stagnant and commercialized but was never modernized. To overcome this issue, Indian government introduced land reforms. To deal with the problems of agriculture, policy makers land reforms lie and high yielding variety seeds को promote किया। इससे इंडियन एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया। लाइक वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो, जमींदार्स ने सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए। वो बस रेंट कलेक्ट करते थे एंड ब्रिटिशर्स को रेंट दे देते थे, जिसकी वजह से इंडियन सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी एंड इंडिया हैड टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द यूएस। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इक्विटी इन एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड through land reforms. Now, what are these land reforms and how did they help in uplifting the status of Indian agriculture and the farmers? Land reforms refer करते हैं गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज जिससे लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओनरशिप ओवर द लैंड चेंज होती है। These land reforms often include actions like abolishing the zamindari rights, redistributing surplus land to the landless farmers, imposing land ceilings and regulating tenancy rights. And all this brings equity in agriculture, जिससे ownership of land से tillers को incentive दिए गए so that they can invest for the improvisation of the state of soil and agriculture. To understand this concept, let's first understand the ownership and incentive concept. For increasing the output of agriculture, it became very important to attach the produce with the interest of the tillers or farmers by making them owners of the land. अब उस agricultural land पे क्या produce हो रहा है is directly related to the interest and gain of the farmers. अब जितना ज्यादा produce होगा उतना ज्यादा profit farmers को होगा। This idea of ownership and incentive was derived after an observation from the issue of the then Soviet Union, जहां पे farmers rotten fruits यानी खराब हुए fruits को fresh fruits के साथ पैक कर रहे थे, even after knowing कि खराब fruits fresh fruits को भी खराब कर देंगे। This was done due to a careless attitude of farmers, जहां पे उनको कोई मतलब नहीं था कि कस्टमर्स
के पास फ्रूट्स किस कंडीशन में डिलीवर हो रहे हैं, एंड क्योंकि उनका प्रॉफिट फ्रूट्स की सेल से अटैच नहीं था। इस प्रॉब्लम को देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड दिस इंसेंटिव मॉडल, जहां पे प्रॉफिट एंड ओनरशिप दोनों को फार्मर्स के इंटरेस्ट से अटैच कर दिया गया। अब ये लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे कैसे? बिकॉज किसी एक से लैंड लेकर किसी दूसरे को तो नहीं दे सकते। इसीलिए गवर्नमेंट एक और कॉन्सेप्ट लेकर आई जिसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। गवर्नमेंट लैंड सीलिंग में एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल्डिंग द लैंड फिक्स कर देती है, सो दैट जिन फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स के पास लैंड नहीं है, वो लोग एटलीस्ट एक छोटा पीस ऑफ लैंड एक्वायर कर सके। इट इज अनदर वे ऑफ इंश्योरिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर। As I mentioned, the purpose of land sealing was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. ये measures लेने के बाद around 2 lakh tenants and landless laborers government के contact में आए, and they were freed from the exploitation of the intermediaries like zamindars. However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries or middlemen. Cause इन इंटरमीडियरीज या मिडलमैन ने लेजिस्लेशन के लूप होल्स को मिसयूज किया। जैसे जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने टेनेंट्स को फोर्सफुली लैंड से हटा दिया एंड लैंड पे दोबारा से ओनरशिप ले ली। सिमिलरली, लैंड सीलिंग की लिमिट को अवॉइड करने के लिए बड़े जमींदारों ने अपने लैंड्स अपने रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, लैंड रिफॉर्म्स किन स्टेट्स में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए थे? क्विकली आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इंडियन एग्रीकल्चर को सॉर्डेड स्टेट यानी बुरी हालत से बाहर निकालने में ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, what is this green revolution and how did it help in increasing the agricultural produce? ग्रीन रेवोल्यूशन एक न्यू टेक्नोलॉजी वाले हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के यूसेज से प्रोडक्शन में इंक्रीज को कहते हैं। द सीड्स यूज्ड रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s, गवर्नमेंट ने हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को यूज करना प्रमोट किया, जिससे फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। जिस इंडिपेंडेंट इंडिया के पास फूड आइटम्स का शॉर्टेज था इन 1950s, अब वो इंडिपेंडेंट इंडिया 1960s एंड 70s तक सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब आत्मनिर्भर हो गया फॉर फूड क्रॉप्स। इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहला एंड सबसे ज्यादा फायदा हुआ wheat crops को। Production of wheat crops increased immensely and immediately. Another question for you to answer here is, which states of India got benefited by this revolution? Quickly share your answers in the comment box. Coming back, another question popped up in front of Indian government, and that was, what will happen only with the increased production? Farmers started consuming all the produced food themselves, leaving nothing to be sold in the market. जब मार्केट तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहुंच ही नहीं रहा है, तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया ग्रो कैसे करेगी? इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फूड क्रॉप्स का मार्केट तक आना वाज नेसेसरी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पार्ट जो मार्केट में सेल किया जाता है, उसको मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। The marketed surplus of rice and wheat जो मार्केट में सेल किए जा रहे थे, reduce the price of these food crops, जिससे राइस एंड व्हीट के प्राइसेस कम हुए एंड एक लो इनकम ग्रुप राइस एंड व्हीट अफोर्ड कर पाया। एंड द सेम मार्केटेड सरप्लस हेल्प्ड गवर्नमेंट टू मेक स्टोरेज हाउसेस, जिससे इन द टाइम ऑफ नीड गवर्नमेंट फूड क्रॉप्स को मार्केट में सेल कर सके एंड फेमीन सिचुएशंस फिर से इंडिया में ना आए। विद दिस द गवर्नमेंट फेस्ड अनदर चैलेंज, जो था बिग जमींदार्स। बड़े जमींदार्स बहुत इजीली ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स परचेज कर सकते थे, एज
दे हैड मनी एंड स्मॉल फार्मर्स के हाथ फिर से कुछ नहीं आता। टू अवॉइड दिस सिचुएशन गवर्नमेंट ने फर्दर कुछ स्टेप्स लिए, जैसे फर्स्ट प्रोवाइडिंग लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स, सेकेंड सब्सिडाइज्ड रेट्स पर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज सब्सिडी? क्विकली शेयर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। प्राइसेस एज सिग्नल, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी डिमांड डिसाइड करती है। एक प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हाई है उसका प्राइस भी हाई होगा। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो गाइडेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है या कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो उसके प्राइस को इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज गर्मी के मौसम में लीची, मैंगो, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन जैसे फ्रूट्स का प्राइस कम होता है, बिकॉज ये सभी फ्रूट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर ये फ्रूट्स विंटर में किसी को परचेज करने हैं तो उसको ये फ्रूट्स महंगे मिलेंगे। अगर सब्सिडी की बात करें तो गवर्नमेंट फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सब्सिडाइज्ड रेट्स पर देती है, सो दैट फार्मर्स कैन प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। बट कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है दैट बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द फार्मर्स गवर्नमेंट फार्मर्स को केयरलेस बना रही है, क्योंकि फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ऑलमोस्ट फ्री या सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिल रही है, इसीलिए फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू आवर टुडेज वीडियो। आज हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर किया है। आई होप नाउ यू हैव क्लैरिटी टू द कॉन्सेप्ट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई विल कवर इंडस्ट्रियल सेक्टर in my next video. Till then, keep shining and smiling. This is me, Hina, signing off for today. See ya. Don't forget to subscribe. Bye bye.